Welcome to your maths video class. Children, I'm sure you all are practicing the exercises that we are doing in the video classes, and you all are clearing your doubts also. You know that we are doing measurement of mass. And this topic I have started a few days back. This topic is related to measurement of weight, which is also called mass. And in this chapter, I have explained to you what are the arbitrary unit of measuring weight, what is the standard unit of measuring weight. All these I have explained in my previous videos. And we have started addition of weight. So we'll continue today with addition only, but before that I would revise what we have done so far. Children, in this topic I have explained to you that we need a standard unit of measuring mass, or we need a standard unit of measuring weight. Why? Because if we measure an object, if we measure the weight of an object using any random unit, then the result will vary. Every person will get a different answer according to the object he or she will use for measuring the weight of the same thing, same object. As there is an example of apple, measuring the weight of an apple. In your book, three people, they measured the weight of same apple by using different units. One child used marbles, other child used wooden blocks, and another person, that is teacher, used chalksticks. And they all got different result, though they were measuring the same apple. तीनों पर्सन वो सेम एप्पल को ही मेजर कर रहे थे, उसके वेट को मेजर कर रहे थे, एंड दे ऑल गॉट डिफरेंट आंसर्स. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने जो वेट करने के लिए जो यूनिट यूज किया, जो ऑब्जेक्ट यूज किया, वो डिफरेंट थे. So to avoid this, we needed a standard unit of measuring weight, and that is kilogram. Kilogram is the standard unit of measuring weight, and I have explained to you in my previous video that you will see those weights, the standard unit of kilogram, the weights of those at shopkeepers, at vegetable vendors, or fruit sellers, or to any provision store. They are called weight. They are made up of iron, and they are in hexagonal shape. ऐसे उसके 6 वो रहता है और वो लोहे का बना होता है, उसको वेट ही बोलते हैं, और उसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है. 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, और कुछ छोटे वैल्यूज के भी होते हैं, लाइक 500 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 50 ग्राम्स. ये अलग अलग वैल्यू के वेट्स अवेलेबल है मार्केट में. और आपने ज़रूर नोटिस भी किया होगा जब आप अपने पेरेंट के साथ मार्केट गए होंगे वेजिटेबल खरीदने के लिए, या फ्रूट्स खरीदने के लिए, या ग्रोसरी का सामान जो खुला मिलता है, जो वेट करके मिलता है, वो जब आप लेने गए होंगे तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड द वेट्स यूज्ड बाय द शॉपकीपर्स, और वो स्टैंडर्ड यूनिट है. अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कम होता है, which has weight less than kilogram, those things are measured in gram. कोई ऐसी चीज है जो बहुत भारी नहीं है, जिसका वेट बहुत ज्यादा नहीं है, जिसको हम किलोग्राम में नहीं मेजर कर सकते, उसके लिए है ग्राम. 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम. 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, और ग्राम यूज होता है कम वेट वाले ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए, उसका वेट मेजर करने के लिए. इवन जो ज्वेलरी शॉप्स होते हैं, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सुनार होते हैं, वो भी ग्राम में मेजर करते हैं. उनके पास भी वेट्स होते हैं. बट सिंस आजकल तो
जो ऑटोमेटिक जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, वेइंग मशीन्स आ गई हैं, तो वो छोटे वाले जो वेट्स हैं या बड़े वेट्स हैं वो भी आपको कम देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेट्स, बट स्टिल दोज आयरन वेट्स आर वेरी मच इन यूज। आप सब्जी वाले के पास तो देखोगे ही, इवन जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आटा चक्की वाले ये जो होते हैं इनके पास भी होता है। दो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स आर वेरी मच इन यूज, बट स्टिल दीज आयरन वेट्स आर ऑल्सो इन यूज। और इसको स्टैंडर्ड यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी मेजर करेगा इन वेट्स से तो रिजल्ट जो है वो वेरी नहीं करेगा, वो अलग अलग आंसर्स नहीं आएंगे। अब बात करते हैं एडिशन की, एडिशन ऑफ वेट विच वी हैड स्टार्टेड इन द प्रीवियस वीडियो। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था ये ऐड करने वाला, और हमने कुछ ऐड भी किए थे, क्वेश्चंस हमने कुछ ऐड किए थे, कुछ ग्राम्स ऐड किए थे, कुछ नंबर्स विद ग्राम्स एंड सम एडिशन विद किलोग्राम्स, ये हमने किया था। आज जो हम एडिशन करेंगे वो किलोग्राम और ग्राम दोनों साथ वाला करेंगे। ग्राम का सेपरेट ग्राम वाला हम कर चुके हैं, सेपरेट किलोग्राम वाला हम कर चुके हैं। आज के वीडियो में जो करेंगे वो है जिसमें कि ग्राम और किलोग्राम दोनों साथ में होगा। बट एज आई हैव टोल्ड यू दैट यू विल नॉट मिक्स ग्राम एंड किलोग्राम टुगेदर। ग्राम विल बी एडेड टू द ग्राम ओनली। जो यूनिट है वो बिल्कुल सेम रहने चाहिए। जो नंबर्स ग्राम में है उनको ग्राम के साथ ऐड करना है, जो नंबर्स किलोग्राम में है वो उनको किलोग्राम के साथ ही ऐड करना है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द एडिशन इज सेम एज यूजुअल एडिशन विच यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर्स। बिल्कुल एडिशन वैसा ही है, बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि किलोग्राम इज एडेड टू किलोग्राम एंड ग्राम्स आर एडेड टू ग्राम। तो लेट्स डू द क्वेश्चंस। अब हम करेंगे क्वेश्चंस ग्राम और किलोग्राम के एडिशन वाले। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Question G and G. Now these two units we have written separately. ग्राम को अलग लिखा है और किलोग्राम को अलग लिखा है। ठीक है, अब लिखते हैं ग्राम। यहाँ पर हमारा है 4 और यहाँ है 2, 4, 6 and to this we are adding 3, 6, 0 and 2. Now as you can see here, this column is for gram and this is for kilogram. Okay, 246 gram, 602 gram. We are adding gram to gram. ग्राम वाले नंबर्स को हम ग्राम के साथ ही ऐड करेंगे और कर रहे हैं। 246 ग्राम है और 602 भी ग्राम है। देन वी हैव 4 kg एंड 3 kg। हाउ डू वी नो कि ये kg है? क्योंकि ये kg के कॉलम में लिखा हुआ है। इट इज रिटन इन द कॉलम ऑफ kg। ठीक है, 4 kg एंड 3 kg दोनों है। तो अब कॉलम जैसे अलग अलग कॉलम है तो हम ऐड भी अलग अलग ही करेंगे। 6 plus 2. Now you have to add 6 and 2. 6 और 2 को आपको ऐड करना है। तो क्या आंसर आएगा? 6 plus 2 करेंगे तो we will get 8. Okay. Then it is 4 plus 0. 4 और 0 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा? We will get 4. Then again 2 plus 6. 2 plus 6 is 6. 8, sorry. 2 plus 6 is 8. Now this 8, 4, 8. मतलब 848.
we have two 8s here. This 8 is 100 and this 8 is ones, hundreds and ones. So this 800, 4 tens is 40 and 8. 848 क्या है? ग्राम है. ठीक है. Now 4 plus 3. 4 plus 3 is 7. This 7 is kilogram. So we know that this 7 is under the column of kilogram. So 7 is kilogram and this number is under the column of gram. So this number is gram. So we have to write also. यहाँ पे हमें आंसर लिखना पड़ेगा 7 kilogram 848 gram. This is the answer. ये आंसर आपको फिर नीचे मेंशन करना पड़ेगा विद along with the यूनिट. यूनिट के साथ आप मेंशन करेंगे. ठीक है. Now next question. Again we will have kg and g. Now the numbers which are for kg will be written below the column of kg और जो ग्राम में है हमारे पास वो उसको हम ग्राम वाले कॉलम में लिखेंगे. So we have 7 which means 7 kg and 315 which means 315 gram. And to this we will add 1 kg 224 gram. Okay. 1 stands 100, 1 stands 100. 315 gram, 224 gram. 7 kg and 1 kg. Now we will add this. 5 plus 4. 5 plus 4 is 9. 2 plus 1 is 3. 3 plus 2 is 5. So answer that we got is 539. 539 क्या है? ग्राम है. Because we have added gram here. ये हमने ग्राम को ऐड किया है तो जो हमें आंसर मिलेगा वो भी ग्राम ही होगा. ठीक है. अब यहाँ पर इसको प्लस करते हैं 7 और 1. 7 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8. Now this here we will not write gram, we will write separately because I was explaining you the answer that we got is gram. Here the answer that is 8 that we got is kilogram. So the answer is 8 kilogram 539 gram. Okay, ये ग्राम है और ये किलोग्राम है. I hope you are understanding this and we will do some more. Just go through it first. Now let's do some other questions. Next one is again we have to write kg and g. Kg, kilogram, g is gram. And what you have to add? 4. 4 means 4 kg and 150 gram. To this we will add 2 kg 353 ग्राम. ओके. अब इसको हम ऐड करेंगे. सॉरी, आई शुड नॉट राइट ग्राम हियर. यहाँ पे ग्राम नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी हमने कॉलम वाइज इसको किया है. ये ग्राम का कॉलम है और ये किलोग्राम का कॉलम है. तो हम कॉलम वाइज हमने लिखा ही हुआ है इसलिए वी विल नॉट राइट ग्राम सेपरेटली. नाउ this is ones, tens, 100, ones, tens, 100. Now this is separate unit and this is separate unit. इसको ऐड करेंगे और कोई भी कैरी वगैरह अगर रहता है तो उसको वहां फॉरवर्ड नहीं करना है. ठीक है. इसको यहीं पे करेंगे. ऐसे तो कैरी वाला है नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ आता है
तो उसमें ध्यान रखना है। 0 + 3, 0 + 3 इज 3। 5 + 5, क्योंकि यहां पर कैरी आ गया, इसीलिए मैंने बताया था पहला वाला था नहीं। 5 + 5, 5 में 5 ऐड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 10। ओके, नाउ वी हैव 2 डिजिट्स, और जब भी 2 डिजिट मिलता है तो एक उसमें से 1s होता है और उसके साइड में 10s होता है। अगर 3 डिजिट है तो फर्स्ट वन इज 1s, देन 10s, देन 100। यहां पर हमारे पास 1s और 10s है। नाउ दिस इज 1s, दिस इज 10s एंड दिस इज 100। ओके, अब यहां पर ये 1s है तो इसको यहां लिखेंगे, और ये जो कैरी है इट विल गो हियर। ओके, 3 + 1 4 + 1 5, विल राइट हियर 5। जो कैरी था वो इधर आया, अगर इधर कोई कैरी आएगा, ऐसा अभी आपके कोर्स में है नहीं, तो जब आएगा देन आई विल एक्सप्लेन यू दैट आल्सो। अभी हमारा आंसर आया 503। नाउ दिस 503 इज ग्राम, एंड नाउ वी विल ऐड दिस 4 + 2, 4 + 2 इज 6। तो ये 6 क्या है? दिस इज केजी, किलोग्राम। क्यों? क्योंकि ये किलोग्राम के कॉलम में है। तो आंसर यू हैव टू राइट 6 kg 503 g, 6 kilogram and 503 gram. Okay, next is, let's take one more. Kg and G. Here we have 4 kg and 408 gram. Again we have 4 kg and 61 gram. This type of addition I have explained you in my previous video also. Here 3-digit number is there and here 2-digit number. When a 3-digit number is added to a 2-digit number, you have to be careful, because the common mistake the students do, especially the students in lower grade, वो क्या करते हैं, जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं वो कैसे लिखते हैं 408 और +61 ऐसे लिख देते हैं, which is wrong. ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि हम मैथ्स में हमेशा कैसे चलते हैं? राइट टू लेफ्ट। ये 1s 10s 100 है ना, 1s 10s 100 है। अगर अलग अलग नंबर को आप देखोगे, दिस इज 1s, दिस इज 10s, दिस इज 100, 1s 10s 100, हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं। और दूसरा जो नंबर है वो है 61, तो इसमें ये 1s है और ये 10s है ना, ये 1s नहीं है या ये 100s नहीं है, ये 10s है और ये 1s है, और यहाँ पर ये 1s है, ये 10s है और ये 100s है। तो 1s को हम 1s के नीचे रखते हैं और 10s को हम 10s के नीचे रखते हैं। अगर आप इसको अगर 6 को उधर शिफ्ट कर दोगे, लाइक एनी अदर सब्जेक्ट, जब हम इंग्लिश या हिंदी लिखते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो अगर हम वैसा अगर लिखते हैं इसको 408 + 61 अगर लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 का प्लेस गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या शो कर रहा है 6 कि वो 100 है, 600 तो नहीं है, 6 क्या है? 10s है। लेकिन अगर हम 6 को यहाँ लिख देंगे तो 600 हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी प्लेस चेंज हो जाएगी, तो उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए ये प्लेस और उसके वैल्यूज को ध्यान में रखना है। 6 अगर 10s है तो उसको 10s में ही रहना चाहिए। अब ये 6 10s है तो वो 10s की ही कॉलम में है।
अगर 6 यहाँ होता तो वो 100 हो जाता, तो वो गलत हो जाता। तो ये 61 है, 60 मतलब 6 टेंस, ठीक है, वो टेंस के कॉलम में है। चलिए उसको ऐड कर लेते हैं। 8 + 1, 8 + 1 is 9, 0 + 6, 6 में 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 ओनली। एंड 4 में कुछ भी ऐड नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो हम कुछ भी इसको साथ ऐड नहीं करना है। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि 4 को हम छोड़ देंगे, 4 को एज इट इज हम नीचे ले लेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 469 ग्राम, 469 ग्राम। अब यहाँ पर इन दोनों को प्लस करना है। 4 + 4, 4 + 4 is 8. So this is 8 kilogram and 469 ग्राम, ठीक है। तो आंसर हम लिखेंगे 8 किलोग्राम 469 ग्राम। दिस इज द आंसर, okay? Now, the addition sums are over. We have done all the sums that are given in this chapter of addition, and now we will start subtraction of weight. weight का हम subtraction करेंगे। Subtraction weight. Now again सेम वही चीज है, जैसे नॉर्मल आप सब्ट्रैक्ट करते हो, आपने सब्ट्रैक्शन सीखा हुआ है, आपको सब्ट्रैक्ट करना आता है, तो जैसे आप जनरली सब्ट्रैक्ट करते हो आपको वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है, बस यहाँ यूनिट को ही ध्यान में रखना है। अब यूनिट को ध्यान में रखना है मतलब यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स according to the unit. You have to subtract gram from gram and kilogram from kilogram. जो ग्राम वाले नंबर है उसको ग्राम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और किलोग्राम वाले नंबर को किलोग्राम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जो ग्राम वाला ग्राम में और किलोग्राम वाला किलोग्राम में से ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप किलोग्राम में से ग्राम को माइनस कर रहे हैं या ग्राम में से किलोग्राम को माइनस कर रहे हैं, विच विल बी रॉन्ग। दोनों सेपरेट यूनिट है तो उनका सब्ट्रैक्शन भी अलग ही होगा, ठीक है। तो अब पहले कुछ एक कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 536 मतलब 536 ग्राम from 898 gram. Now this also I have explained earlier also that ये जो from होता है इस ये भी आप लोग इससे भी बहुत कंफ्यूज होते हैं जब क्वेश्चन ऐसा रहता है। जब लिखा हुआ है कि 536 ग्राम को सब्ट्रैक्ट करना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 536 फ्रॉम 898, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। बट व्हाट चिल्ड्रन नॉर्मली द जनरल मिस्टेक दैट चिल्ड्रन डू इज ये नंबर पहले लिखा है तो इसको लिख देंगे और माइनस वो बाद में लिखा है तो उसको ऐसे माइनस लिख देंगे, एंड इट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? पहले तो क्वेश्चन ही आपने नहीं समझा इसलिए रॉन्ग है। दूसरा, ये ज्यादा नंबर है, ग्रेटर नंबर है, इसमें से स्मॉलर नंबर कैसे निकाल सकते हैं?
आपके पास कोई चीज अगर 5 है तो उसमें से आप 8 कैसे दे सकते हो किसी को? अगर आपके पास 5 टॉफीज हैं तो आप उसमें से 8 तो किसी को नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास 5 ही है, तो वैसे भी गलत है। और क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट दिस, ये वाले हमें माइनस करना है। और फ्रॉम मतलब होता है में से, किसमें से? इसमें से, इस वाले में से सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला। फ्रॉम का मतलब होता है में से, उसमें से। तो ये जो मिस्टेक है जो कि बहुत कॉमन है, इसको बहुत ध्यान रखना है अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो अब आपको ये आप समझ में आ गया कि इसको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट ये करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम कहते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर, सब्ट्रैक्शन का साइन पता है आपको, माइनस, तो हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट हो गया मतलब माइनस। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 5, 3, 6 ग्राम फ्रॉम, में से, किसमें से? 8, 9, 8 में से। अब हो गया, समझ में आ गया? माइनस करना है इसको इसमें से, अब इसे हम माइनस करेंगे। ठीक है, 8 माइनस 6, 8 में से आपको 6 जो है वो रिमूव करना है। यू हैव टू टेक अवे 6 फ्रॉम 8। तो ले लीजिए, 6 को निकाल दीजिए, आपने लेके रख लिया। अब 6 आपके पास नहीं है, 1 से लेकर 6 आपके पास नहीं है, तो 6 के आगे से ले लीजिए, 7, 8 मतलब 2। नाउ यू हैव टू टेक अवे 3 फ्रॉम 9। 9 में से आपको 3 लेना है, तो 3 ले लीजिए, लेके हटा दीजिए उसको, 3 निकल गया। अब 1 से लेकर 3 तक नहीं है, तो 3 हमें देखना ही नहीं है उसकी तरफ, 3 हटा दिया। अब 3 के आगे से गिनेंगे, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। You get 6. Now you have to remove 5 from 8. 8 में से अब आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना है। सो रिमूव 5, हटा दीजिए 5 को। अब हमारे पास 1 से 5 नहीं है, तो 5 के आगे से गिनेंगे, क्या होगा? 6, 7, 8। कितना हुआ? 3, 6, 7, 8। तो हमारा आंसर क्या आया? 362 gram. Unit, as I repeatedly I have told you, write unit. Don't forget to write unit. Okay. So answer is 362 gram. 362 gram. एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। Subtract क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 38 kg from 52 kg. Again understand the question. क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में साइन डालिए, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 38 kg को। किस में से कर रहे हैं? फ्रॉम में से, 52 kg में से, इसमें से कर रहे हैं। ठीक है, 52 में से 38 kg हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब क्या 2 में से 8 निकालना पॉसिबल है? कैन वी सब्ट्रैक्ट 2? कोई चीज आपके पास 2 है, उसमें से आप 8 निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे? पड़ोसी से ले लेंगे। पड़ोसी क्या है? टेंस है, 5 टेंस है, मतलब उसके पास 5 10 है, तो उसमें से एक 10 हमने ले लिया। यहाँ रह गया 4 10। अब एक 10 ले लिया और ये वाला 2 ले लिया, तो 10 + 2 कितना हो गया? 12 हो गया। नाउ वी हैव 12, और 12 में से अब 8 हम ले सकते हैं। सो लेट्स टेक 8, ले लीजिए, 8 ले लिया। अब उसके आगे से हम काउंट करेंगे, 9, 10, 11, 12। कितना हो गया? 4, है ना। अब
12 जो है वो हमने जब ले लिया तो 12 में से 8 माइनस किया तो आ गया 4। अब यहाँ कितना बचा है हमारे पास 4। अब इस 4 में से 3 रिमूव कर दीजिए, टेक अवे 3, यू विल गेट 1। आंसर इज 14 kg। आंसर इज 14 kg। तो ये हमने स्टार्ट किया सब्ट्रैक्शन। अभी सब्ट्रैक्शन में और भी सम्स हैं, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था। हमें जो आपकी बुक में जो सब्ट्रैक्शन सम्स दी हैं वो हमें करना है सॉल्व, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड सब्ट्रैक्शन सम वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।